So, दोस्तों, one of my favorite filmmakers, and I guess since you're both like a part of the whole writing process, you're both what I'm a fan of. But I always saw his face because his name says director. But I'm a massive fan of your work. मतलब Na Maloom Afraad से लेके अब तक, and I think first time I met you at Lahore somewhere, and I told you. I was like, sir, massive fan. But I've seen a lot of your music videos, and I like the kind of music you used to make. So I knew you from that area. I'm glad. Thank you so much. It means a lot coming from you, sir. तो बताएं वो I mean, how did you guys end up working together the first time? I hear it was a drama, because मैं Wikipedia से ही गेज कर रहा हूँ कि एक ड्रामा आपने इकट्ठा किया था जिसमें आपने लिखा था मिलके, और किस तरह ये हुआ? नहीं, that's not true actually. That's not true? I think Wikipedia we've not been updating Wikipedia for ourselves, maybe, and I think it's time that we should do it. लेकिन I and Nabeel used to work in a channel together. It was launching then. It was the beginning of a channel. That's where we met. It's a story repeatedly told. हमने कई बार पहले भी बताई हुई है interviews में. I had a small camera which he wanted to use, so he tried to become my friend for the camera. Later I found out that he wanted to use the camera. So that's how we met. उस टाइम पे वो छोटे हैंडीकैम्स होते थे, CCD कैमरा, zoom built-in zoom वाले ना, उसके अंदर वाइड एंगल भी था. तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार इसके पास ना अपना कैमरा है. अब हम लोग टीवी चैनल में काम करते थे उस टाइम पे, वही टीवी चैनल तो हमें कैमरा देता था, रिक्विजिशन भरो, फिर लेके जाओ, उनकी मर्जी की चीज़ बनाओ. तो मैंने बोला यार अगर पर्सनल अपनी कुछ चीज़ें बनानी है, कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह, तो कैमरा चाहिए होगा. तो पता लगा इसके पास है, इससे दोस्ती करते हैं. तो कैमरा मिलेगा. मैंने बोला यार कैमरा तो है, लेकिन मैंने तो अपने लिए लिया है. मुझे तो खुद भी फिल्म्स बनानी है. उसने बोला अच्छा चल ठीक है. फिर I had some ideas, हम लोगों ने बैठ कर डिस्कस किए, and then our first work was for Kara Film Festival. Yeah, it's back then when we had Kara Film Festival. So we sent a couple of short films there. We got a little bit of appreciation. And then उसके बाद हमने टीवी के लिए, क्योंकि हम लोग काम भी कर रहे थे, एक ही ड्रामा किया था ना. वो जो ड्रामा मैंने प्रोड्यूस किया था वो नबील ने डायरेक्ट नहीं किया था. अच्छा, तो ये विकिपीडिया की गलती है. ये गलती है. बट हमने एक बच्ची थी छोटी, जिमल. हम एक शो करते थे चाइल्डहुड विद जिमल, उसमें हम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करते थे. सो वो शो हमारा बिगिनिंग थी, जिससे हम लोगों की फीसेस भी निकलती थी, फ्यूल भी निकलता था, और खाने के पैसे. वहाँ से ये कंपनी जो है फिल्म वाला पिक्चर्स बेसिकली. It's 2004 we started it. अच्छा, फिल्म वाला is just the two of you, or is there like a whole No, it's basically. Who are the main guys? It's us. Yeah. The two of you, right? Yes, but then we have like team when we are making films. Yeah, of course. It's a post-production. Partners, post-production, and then ADs. So we have like quite a few in-house assistant directors and people, but equipment भी अपनी है. Equipment, yeah, we have a post-production now. We have our own post-production की equipment है. Yes. मगर camera we. No, but that's pretty much ours, because Rana Kamran, our DOP, has been the same for all the films, and हम हर फिल्म में कोशिश करते हैं नया equipment साथ लेके आएं. So we have each other's support on that. Nice. So, which one? What camera did you shoot this one on? XT. This is a new. At each film we've Alexa had XT. Yeah, the one they shot in 1921. Yeah. Oh. Yeah. उसके अंदर इतनी लंबी वन टेक्स है ना, वो खत्म ही नहीं हो रही. मैं सोच रहा था कि 20 मिनट की टेक है और बेनेडिक्ट कम्बरबैच इसके 19वें मिनट में आएगा, तो वो बैठा वेट कर रहा है, और वो 20 मिनट वो ट्रेंचेस में से शॉट जा रही है. Imagine that. The amount of rehearsals they must have done, or the blocking is so beautiful. Oh, it's amazing. That film is making ही इतनी जबरदस्त है. One of the best war films. I think next to Saving Private Ryan and third, like I mean, मैं top 10 list बनाता हूँ war films की, तो मेरे दिमाग में वो आना शुरू हो जाता. Like I always make these top. Do you make top 10 list for films? Yeah, बहुत difficult है, because बहुत डिफिकल्ट है फिल्म्स को रेट करना मेरे लिए. तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ. बट टॉप 5 फिल्म मेकर्स तो कोई होंगे दुनिया. हाँ, फिल्म मेकर्स हैं, वो कर लेते हैं, वहाँ पे करते हैं. ये क्या है? कौन क्विंटन तो है, मुझे पता है. हाँ, डेफिनेटली क्विंटन टैरेंटिनो, देन गाय रिची, ठीक है ना, देन स्पीलबर्ग इवन फॉर दैट मैटर, एंड फिर इंडिया में लाइक विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, राजकुमार हिरानी फॉर दैट मैटर. सो देयर आर फेजेस के जब आपको किसी का और का काम पसंद आ रहा है, बट ये वो लोग हैं जिनका काम, या लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू सी.
So do you study their approaches and apply that, or do you just like वो आपकी natural एक instinct चल रही होती है उसके हिसाब से आप चल रहे होते हैं? Yeah, I like to hear their interviews actually. Same. You know? Yeah. Well, when it comes to me, honestly speaking, I've never had a list of films, never had like a list of makers in my mind. I'm the least watching person on the planet. I can guarantee that. I like to read. How do you write? I like to read more than I watch. And मुझे लगता है when I watch, I get influenced. In my writing, which is something that I don't want. So before I'm writing, I really don't want to watch. While Nabeel is like always watching. मेरा ये कुछ भी नहीं पढ़ता, सिर्फ देखता हूँ. देखता ना. मैं नहीं देख सकती. मैं वो एक कमाल एक मिलाप बन रहा है ना कि आप लिटरेचर से उठाती होंगी. हाँ, मुझे फिल्म से उठाती हूँ. मैं किताब पढ़ सकती हूँ. मुझे किताब पढ़ने में मजा आता है. Given the time that I need to read the book, because I really want my time and my isolation when I'm reading. And I'm a mother of two, and for me, division of time is also very important. So it depends. If I get time to read, of course, if I get time to myself, I'd read rather than watching. But I do watch. I watch films that are, for that very day, it's making my day. If I'm sad, it's helping me. If I'm happy, it's maintaining it, something like that. So मैं उसलिए तो film देखती हूँ as a normal human being, but not as a maker. As a writer, I feel it is important. I don't know, for a lot of people, it is, enhancement of craft, watching other people's work. Yeah. I think जब मैं generally film देख रही होती हूँ, maybe I'm doing that, of course, subconsciously. But मैं ऐसे बैठ के अगर film देखूँ ना कि यार, तो वो मैं सिर्फ फोटोग्राफिकली तो उसको नोट कर सकती हूँ. मैं उसका राइटिंग ग्राफ कभी भी नोट नहीं कर पाती हूँ. अच्छा, मेरा ये है कि मैं तो हर तरह की मूवीज देखता हूँ अदर देन हॉरर मुझे पसंद नहीं है. और हॉरर में भी वो स्लैशर वाली जो होती है ना जिसमें सारा खून खराबा ही होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं. तो वो मैं नहीं देखता, बट अदरवाइज मैं फिल्म्स देखता हूँ. एक तो रीज़न ये है कि यार क्या चल रहा है, क्या टेक्निक है, वो चीज़ें नोट करने के लिए. फिर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि फिजा फिल्म नहीं देखती है, मैं फिल्म देख चुका होता हूँ. तो समटाइम्स व्हेन वी आर राइटिंग, तो अगर ये कोई चीज़ सोचती है और बोलती है कि ये लिखना है, तो मैं बोलता हूँ यार फिजा ये अच्छा है लेकिन ये हो चुका है, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन अदर फिल्म. तो उसने नहीं देखी वो फिल्म, तो मैं बता दूंगा यार ये तो फौरन लगेगा जैसे हाँ ये तो यार ये इस तरह का. not watched that thing, but of course human mind thinks alike, so तो मैं बोलता हूँ यार ये चीज़ हो चुकी है, इससे सिमिलर चीज़ कुछ इस तरह की हुई भी है, हो चुकी है. तो यार वो बड़ा जरूरी है. Strangely enough, in my writing process, I'm ending up referencing. Maybe I should try this other way around, because आप यूनिक कर रहे हैं ना, उसको मुनफरिद बनाने की कोशिश में कि ये कोई चीज़ ऐसे पहले ना हो चुकी हो तो मैं करूँ. हाँ देखो, एक तो सबसे पहली कहानी है ना, कि पहले तो आपकी कहानी ही थोड़ी सी मुनफरिद हो. हमारी कोशिश ऐसी होती है, ठीक है ना. एंड देन सिचुएशंस, विजुअल ट्रीटमेंट में यू कैन से कि हाँ यार विजुअली समटाइम्स तो होता है कि आपका दिल करता है कि यार ओके आई वांट टू पे अ होमेज टू दिस मेकर, आई विल डू द सिमिलर शॉट जैसा उसने किया हुआ है, बट आई वांट टू डू इट बिकॉज मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है. मे बी लोगों को लगेगा अरे यार कॉपी कर दे, बट इट्स नॉट लाइक उस तरह से कॉपी. इट इज माई वे ऑफ saying yes sir, like you do it, okay I'll do it, because eventually we all are somehow fans of a lot of other makers, even Tarantino for that matter. If you see वो anime से बहुत सारी चीजें similar उठाता है, या पुरानी films को redo करके करते हैं चीजें. तो exactly, so वो treatment में you can say sometimes कि हाँ यार ये चीज थोड़ी similar है, but yes when it comes to script और situations we try कि यार हमारे अपने जो है ना वो situations और चीज़ों, ताकि एटलीस्ट जो देखने वाला आ रहा है उसको सिमिलर चीज़ ना मिले या सिमिलर रैशनल ना मिले. तो दैट इज वेयर वी ट्राई टू ज़बरदस्त. सो बेसिकली इन द राइटिंग प्रोसेस आप हकीकत से उठाना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उठाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से उठाना चाहते हैं, मगर टेक्निक के हवाले से तो वो दादे जो बैठे हैं बाहर जिनने कोई चीज़ कर दी है, पे तो माफ़ी नहीं देते ना. हाँ, टेक्निक पे माफ़ी नहीं है हमारे यहाँ. हमारे इतनी फनी बात है जाके दुनिया में नहीं होती. हमारे स्क्रिप्ट पे माफ़ी मिल जाती है, टेक्निक पे नहीं मिलती. जबकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बहुत ही बुरी लिखी हुई चीज़ें लेकिन वो खूबसूरत शूट हुई होती है, उनकी तारीफें हो रही होती हैं, लेकिन वो बस एवरेज होती हैं लिखाई के अंदर. लेकिन कभी कभार बहुत अच्छी लिखी हुई चीज़ देखिए उसकी शूटिंग अच्छी नहीं होती, उसको ये कहा जाता है कि यार काश अच्छी शूट भी कर लेते. सो ये ऐसा होना नहीं चाहिए. और एक्चुअली ऐसा होता है समटाइम्स, अगर आप इंटरनेशनली देखें, थिंग्स दैट आर वेरी ऑर्डिनरी ऑन अ शूट लेवल, बट द कंटेंट इज लाइक रियली स्ट्रॉन्ग. It's worked for the whole team, I mean, बहुत सारी अभी recent examples हैं आपके पास. If you look, it's always the content over form actually. Most of the time. But obviously, when you talk I think we've started going towards the gloss more. I mean,
gloss is very important somehow. Yeah. You know, it is just like carrying branded handbags and, you know, not carrying branded handbags, you know, if a girl's perspective, if I say. तो वो उसको उस तरह से हम चीज़ों को कितना अभी ना आपने शादी, हर फिल्म में शादी है और उसके अंदर जोड़े हैं और उसके अंदर तैयारियां हैं, ऐसे पल्लू हिला है उसका परफेक्ट शादी का गाना होगा फिल्म में, पूरी रेनबो के जितने रंग है वो ग्रेडिंग में आपने सारे निकाल लेने हैं, सारे रंग अगर निकले हुए तो आपकी फिल्म महंगी है। और अगर आपकी फिल्म में हल्का सा आप सटल चले गए, टोन कर दिया तो आप तो भाई अगर आपने वार्म टोन किया हुआ है, या जैसे फॉर दैट मैटर यू नो ना मालूम अफराद दिस टाइम पर आई है, पीपल यूज्ड टू थिंक ये तो बहुत सस्ती बनी होगी क्योंकि रियल लोकेशंस हैं और वो कचरे में सीन, अरे भाई वो रियल लोकेशन नहीं, वो क्रिएट किया हुआ है, वो उधर आर्ट डायरेक्शन, आर्ट, yeah, like you know that house was constructed, it was like plain chat, we created a actual house, you know, with ईंटें cement, not like even a set, ताकि वो real look आ सके, ठीक है ना? क्या बात है, और वो aged भी था उसमें, हाँ, तो गंद सारा, you know, because we both started our career as assistant director, so we did a lot of art direction for commercials and styling, so हमें वो चीजें अभी तक ना हम अपनी चीजें खुद कर रहे होते हैं वो, because हमें वो शौक है, it's not like, so you don't have a production designer on? we like Na Maloom Afraad में we kept, Na Maloom 2 में we kept actor, but Quad-e-Azam में we did not kept, and last we did. But you're very involved. Like I'm assuming like Wes Anderson type director भी वो खुद ही production designer. हाँ, so we both like design the whole, you know, art direction हम खुद ही करते हैं. Art, costume, we try and do things ourselves. But then we, for example, I feel कि हाँ यहाँ पे she should be wearing Nomi and sari, then I will go to Nomi and say, Nomi, here she needs you, please help us here. But if she needs to be in her kitchen, then of course, you know, we have to see कि उसके घर के अंदर वो कपड़े वो लड़की कैसे पहनती है, क्या मेरे पास ऑलरेडी वैसे कपड़े हैं या नहीं है, तो हमने तो ऐसा भी किया कि हम नया कपड़ा लेके उसको वॉश करवा के, यू नो, ताकि उसकी शाइन निकल जाए, बिकॉज नए कपड़े का अपना एक ग्लॉस होता है, सो वो निकाल के उसको या फिर आपने बनवाने के बाद उसको ड्राई क्लीन करवाया फिर बनाया। कभी कभार हम पुराने कपड़े, मेरे कपड़े, नबील के कपड़े, मेरे कपड़े तो बहुत साथ में, मेरी जैकेट बहुत पूरी फिल्म में पहनी है एक्टर इन लॉ में, वो मेरी ही जैकेट थी तो मैं वो ले आया। इसी तरह हम लोड वेडिंग कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो एक वो जूते होते थे ना स्क्वॉश, चीता स्क्वॉश होते थे वो, स्नीकर नॉन मार्केट शूज, तो वो मुझे ना वो पहनाने थे उसको ना कि यार शबार के भी इसमें वो मैंने, तो अब वो नए तो मिल गए लेकिन फिर भी वो नए में एक एज नहीं आ रही थी। अब हमने तो दिखाया नॉर्मल रोज जगह का बंदा है, तो उस दिन क्या हुआ, हमारे ऑफिस में कुछ कंप्यूटर वगैरह खराब हुआ था, तो एक आईटी का कोई लड़का आया बाहर से काम करने के लिए, उसने वैसे जूते पहने हुए थे और रगेड एकदम ना, मैंने कहा यार ये तुम ये नए जूते लो और मुझे ये अपने पुराने वाले दे दो, वो और वो मेरी शक्ल देख रहा है ना कि ये इसको क्या हो गया यार, ये बंदा मुझे नए जूते लेके मेरे पुराने ले रहा है, मैंने वो पुराने लिए और वो फिल्म में जो है वो फात को बनाए। तो वो कुछ चीज़ें जो हम वी लाइक टू डू इट लाइक यू नो आ वे, और हम खुद जाके उसमें एफर्ट डालते हैं, एंड आई थिंक दैट made a lot of difference. और मजा आता है फिर आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना उस चीज को, और वो नजर आ जाए अगर किसी एक को भी, या हमें ही नजर आ जाए अच्छी तरह से आ जाए, so then you're like अच्छा क्या था उस वक्त कर लेता। There are many times that I end up painting the set myself, you know, like some bits of it where I feel there's a texture required, or there's the you know it doesn't look, it looks too fresh, तो उसको एज करना है, या for example you know किसी का फेस पेंट करना है, कुछ तो इस तरह की चीजें हम लोग खुद कर लेते हैं, you know, rather than कि हम एक बंदे को बताएंगे, वो बंदा फिर बेचारा जाके करेगा और फिर हमसे बोलेंगे तूने सही नहीं किया, हाँ, सो तो गलत बात है। वो भी बुरा फील होता है, but I mean it comes across as a viewer, I see all those little details, and that's why I mean all of them are telling the story ना। तो अगर वो जूता है, वो पुराना है, तो वो एक किरदार का एक हिस्सा बता रहा है ना, वो कहानी ही सुना रहा है, तो that's why I think there's so much emotion that comes out when I'm watching Actor-in-Law, Na Maloom Afraad. I haven't seen Load Wedding yet. Is it on Netflix? It's on Amazon, but I think you'll even find it on Vidly. Yeah. Yeah, Vidly. They sponsored this thing as well? Yeah, they are the partner in the movie. What is Vidly? I don't know. Vidly.tv is basically a OTT platform, Pakistani OTT platform. Pakistani? Yes. And it has most of the Pakistani movies on it, and international content as well. Yes. So I should pay for this. I mean, is it a subscription service? Yes, I think it is a subscription based, but it's video on demand. I think it's a video on demand नहीं है. No? It is a subscription based. आपके phone network के through you can pay करते हो आप. And I don't think it's not as expensive as. Immediately releasing it on cinema and Vidly at the same time? No. It's releasing in cinemas first, internationally, everywhere, and then we will, you know. We'll go on TV and Vidly together. And then Vidly together, yeah. So over years, like, I mean, of doing all these, like he's getting the service shoes, you're getting like the wall painted.
how did you guys decide कि ये चीज़ मैं करूँगी, वो चीज़ वो करेगा, या ये एक automatically over years एक चीज़ बन गई? And like, do you ever disagree on things like यार ये पेंट नहीं सही, ये जूते नहीं लेने चाहिए थे? Major, we have like major disagreements sometimes, and sometimes we don't. See the good part who is wins? It depends. You know, we know exactly whoever convinces actually. You know, I mean, दलील जो सही पेश कर रहा है, सही है. और दूसरी बात ये भी है कि sometimes we leave it for the other person to actually fail. You know, कि अगर ये बुरा हो गया ना तो इसको बताऊंगी बेटा. Oh no! You know, बदले ले रहे हैं, मतलब आधों की क्या? अच्छा, करोड़ों की फिल्म में बदले लिए जा रहे हैं. अच्छा मैंने देखा हमारा यूजुअली सेट पे आके कभी भी ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ नहीं होता. We discuss जो भी होता है ना, एक्टर्स के सामने अथॉरिटी खराब हो सकती है. हाँ, also you know, not that actually हम लोग पेपर पे इतना काम कर लेते हैं घर पे बैठ के. So we come sorted on set. You know, मेरे साथ अब लेटली ऐसा हो गया पिछली 2-3 फिल्मों से. नाउ यू नो फिजा शूट पर ऑल द टाइम होती है वहाँ पर ही, बिकॉज हमने साथ लिखा हुआ होता है. तो सीन शूट हो रहा है तो आई ऑलवेज यू नो आई आस्क कि यार हाँ ये सही है ना, बिकॉज क्योंकि हमने लिखा हुआ साथ है, सोचा हुआ साथ है. सो अगर ये कोई चीज़ बोलती है यार इसको ऐसा करके देख लो, तो आई ट्राई एंड यू नो डू दैट, बिकॉज यू नो वी हैव कंसीव्ड इट टुगेदर. तो आई एम अ डायरेक्टर, ठीक है, एंड फाइनल कॉल मेरी है, ठीक है, बट स्टिल यू नो आई आस्क हर एंड आई टेक सजेशंस. बट यूजुअली हमारा जो आर्गुमेंट है ना वो राइटिंग में हो जाएगा. समटाइम्स उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि कोई एक आध, मैं मुझे लगता है विद टाइम थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ. मे बी अगर मैं शायद अकेला वो होता राइटर डायरेक्टर, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो आप बात करते हैं ना भी गाली वाला जॉनरा और ये वाली चीज़ों में जाता तो मैं शायद उस तरफ निकल जाता. बट बिकॉज आई वर्क विद फिजा, we write together. That's nice. I have an ethical code that. So you know, I need someone like that. तो because ना मालूम अफराद में if you see a lot of things, you know, हमने लिखी, हमें अच्छी लगी, बट उसमें उसकी एक रीजन मुझे सिर्फ क्या लगी, ना मालूम अफराद जब हमने बनाई थी ना, वो ठीक है, वो उसका जॉनरा उस तरह का था कि उसके अंदर उस तरह की लिंगो चीज चल सकती है. बट देन यू नो कुछ और लेटर पाकिस्तानी मूवीज ऐसी आई जिन्होंने बहुत ज्यादा डुअल मीनिंग डायलॉग्स करना शुरू कर दिए, एंड देन हमारे डबल मीनिंग था. हाँ, तो हमारे यानी कि टेस्टफुली डन नहीं था, वो थोड़ा क्रिंज था. तो मुझे लगा यार ये ना हमने शायद थोड़ा सा गलत एग्जांपल सेट किया, एंड पीपल आर गोइंग दिस वे, दे आर थिंकिंग बिकॉज यू नो इन्होंने थोड़ा सा इस तरह के जोक्स किए तो हम भी इस तरह के करते हैं. देन यू नो आई स्टार्टेड यू नो टेकिंग थिंग्स मोर यू नो आई वुड से मैच्योरली. He would listen to me when I say no, this is something we don't want to do. Yeah, so now I know, now तो I this Quad-e-Azam, Quad-e-Azam देख लो या आप load bedding, so they are totally family movie. Acted law, yeah. So you know they are totally family movie. You can come and watch it with your kids. There is no any dual meaning dialogue or anything like that. It's a nice comedy, feel good. So वो I think that is because of Fizza. मैं अगर मैं वैसे तसव्वुर कर सकता हूँ, I feel like Quentin Tarantino, मतलब कि वो तो डायलॉग ही ऐसा है कि वो गाली पे गाली बोल रहा है. See, it is okay अगर if we had certification in Pakistan, which unfortunately we don't have. You know, I mean, if we had certifications where we would say okay, this film is like for, you know, 16 plus, 14 plus, whatever, I would be happy. Yeah, then I'm sure that the children are not coming. Yes. Having kids, you know, I'm a mother of 2. Makes sense. I feel the responsibility if a parent is going with the children to the cinema, not knowing what's going to be shown, it can be complicated. You know, I mean, you do not want your child to be exposed to, you know, foul language or you know things that are inappropriate for the child, right? Yeah. So वो मुझे लगता है हाँ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं. हम तो कब से कह रहे हैं सेंसर वालों से यहाँ पे यार सर्टिफिकेशन होना चाहिए. Yeah, because certificate आप 18 plus कर दो, ठीक है, 18 plus कर दें हम. और I'd be happy to you know exactly, and 18 plus का मतलब ये नहीं है कि that 18 plus does not mean that you will be like making a you know बहुत bold concept. हद ही पार कर. Exactly. 18 plus could be because of violence. आपको because of adult content है ना वो, मतलब कि जो ज़्यादा उम्र के लोग. देखिए हमारे पास अभी तक टीवी न्यूज़ के अंदर रेटिंग नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइम टाइम के ऊपर जो न्यूज़ चल रही होती है, हाँ, और उसमें बस वो सिर्फ लिख देते हैं कि जी वो पेरेंटल गाइडेंस, बट थोड़ी सी ब्लर मार देते हैं कई दफा. They'll see someone blowing up and they चीख के बोला होता है बंदा मर गए, कसर उड़ गया, झुलस गया, मतलब यार झुलसावा बंदा दिखा दिया एक, मतलब नहीं वो इनसेंसिटिव. मुझे लगता है कि आप सिर्फ अगर एक बार वी हैव टू, जो कहते हैं ना कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता. वी आर feeding people's mind. We are the ones seeding, you know, here. Yeah. We cannot say we don't have a responsibility. Hello. Yeah. I mean, to me as a maker, I feel we do have. I do not want to go and school people.
don't want to just pour my ideology into somebody's mind. But yes, when you talk about a social code, you know, then it has to be correct, because then this is a society where we all have to live, and our children and their children. Yeah. And even if we don't have kids, for the next generations to come, you know, you have to leave for example, you don't litter, you think pollution is bad, you think हाँ यार अब global warming हो रही है, हमें कुछ करना है environment के लिए, पौधे लगाने, ये सब चीज़ें हम कब बोलेंगे या हम कब सिखाएंगे, इसी तरह से चलेगा ना. I mean, I grew up watching Al Pacino's and Robert De Niro's and Martin Scorsese films which had a lot of violence in it. Yeah. And I wondered, like, at that point, एक वो casino में वो pen वाला scene है, जो पेशी पकड़ता है pen और एक बंदे के यहाँ. And there's blood coming out and all sorts of things happening. And I watched it and I was shocked at that point. But it didn't affect me in a negative way. कि उसमें वो ये नहीं था कि मैं एकदम से violent आदमी बन गया. मुझे ये था कि यार ये इस तरह के पागल लोग हैं दुनिया में. Right. Moreover, everybody has a different way of reacting. So what do you think? All this cinema did not impact kids who are going out and killing people in the high schools in America? I'm not quite sure how that works, right? I mean, I'm sure there has to be something that bothered them, or at least made it feel so easy. Shooting a gun made it look. Video games का I think exactly. I was about to say that is. Part. I think video games are the more I mean, think in Pakistan, responsible for that. हाँ वो बंदा मतलब कि काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बंदों को कत्ल करता है गेम में. उसकी गेम ही है. गेम ही है ये. और वो दूसरा वाला जो न्यूजीलैंड वाला बंदा आया था. न्यूजीलैंड में हुआ था. It was basically he was trying to play live video game. You know, I mean. हाँ. I don't know. I also play video games. But for that matter, you know, this latest series, Squid Games. On Netflix, people are like, you know, raving reviews, everybody, even I watched it. Then, you know, I thought, what they are doing is like, they are trying to immune us towards violence, because it is a violence. ठीक है, उसके अंदर बहुत symbolism है, सब कुछ है. But eventually, in longer term, वो आप, मुझे लगता है ऐसा जैसे कि ये, they are trying to, you know, make it normal. And this is what this medium is doing. And how it's done is a different thing as well, right? Like there's this director Michael Haneke, he's a European director. उसकी हर फिल्म में ना एक moment of violence होता है, लेकिन वो moment of violence जब आता है ना, it's not like Squid Game where there's every 2 minutes there's like somebody's head being chopped off, or like the Quentin Tarantino film with the Kill Bill, like वो कटा तो फवारे निकल गए ना, मतलब तो उसमें वो जो violence जिस तरह वो use करता है ना, कि वो आपको टेरराइज कर देती है, और उसके बाद आप कहते हो खुदा ना करे ऐसे में किसी के साथ हो. लाइक वो आपके अंदर एक खौफ पैदा करती है उस चीज की. तो हाउ यू यूज इट, if you're glamorizing it, exactly like the scene in Godfather where Sonny gets shot dead, it's a pretty traumatizing torture meister of a scene. Like you go like, for that matter, Anurag Kashyap's ugly, oof, Topa, when you see the dead baby for in days. You know, and I mean, I've seen violent things, but this is the most violent for me. You know, it's like the most haunting for me when you see that child. You're done. When you see that child. Or even train spotting. When that kid, like when they're doing drugs and they forget to feed the child, or वो पे blue हुआ होता है. They wake up these drug addicts and they look at the child. So this is this film about like a bunch of squatters who are like on Danny Boyle, right? Danny Boyle. एंड वो ड्रग्स कर रहे होते हैं, और एक बंदी भी होती है जिसका बच्चा भी होता है, तो शी फॉरगेट्स टू फीड द चाइल्ड एंड शी इज हेरोइन के नशे में. 6 दिन बाद उठती है, वो बच्चे को देखती है, वो बच्चा मार चुका होता है, ब्लू हो चुका होता है, वो बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा उनको हॉन्ट करता है कि वो दीवार पे चढ़ता हुआ आ रहा है, वो दीज आर जस्ट हॉन्टिंग ड्रीम्स दैट दे हैव. तो दोज थिंग्स लाइक हॉन्ट यू, देन आई थिंक इट्स अ गुड way of doing then you're trying to basically give people a lesson that, you know what, if you do something like this, you'll end up like this, you know. Maybe or 127 hours, but the guy chops his hand off. But even then, not for the children, right? Not for children, I suppose not. Like PG-16. I don't know how you decide an age either on this thing. Like, see, the problem is that I don't know, abhi I may sound too conservative on this, so there's no point talking about it. No, it's okay. For me, screen access is very different, you know. I mean, for me, I'd give my child books to read of a 14 years old, you know, if she's 13. Yeah. But I cannot give her a film which is for 14 years old. It's a very different world, you know, altogether. A book that's written for a 14 years old child leaves a lot on the child's imagination. And the imagination is built on that video that you're giving them. And that video is way ahead, you know, I mean, of a 14 years old.
Yeah. So Yeah, that, it's just like that, I have nephews. So उनको मैंने वो Netflix का प्रोफाइल बना के दिया, तो जो 13 years वाला है उसको मैंने 7+ का दिया, तो वो मुझे बोलता है मैं तो पता नहीं 13-14 का हूँ, तो मुझे 7+ है। मैंने कहा ये 7+ जो है वो अमेरिकन ऑडियंस है। सही है ना? तो ये जो 7+ अमेरिकन ऑडियंस है ना, ये तेरा जब तू 18 का होगा तो मैं तुझे 13+ दूंगा, ठीक है? because there's a lot in children aren't, see over there children are educated for a lot of things too, so वो भी एक मसला है, but yeah, that's a different So topic when you're altogether. directing on set, are you both looking at the director's monitor? Who's directing the most actors? of the time, yes. Most of the time, yeah. Actor से कौन जाके बात करता है? एक्टर से आई मोस्टली समटाइम्स इवन आई तो अगर ये बोलती है यार ये सही नहीं कर रहा, तो मैं भी समटाइम्स को बोल देता हूँ कि हाँ यार तुम बोल दो बेशक, डजंट मैटर, वी डोंट हैव दैट। एडी को नहीं भेजते आप? अच्छा नहीं, मेरा एक बड़ा इशू है, तो मैंने तो देखा एडी आ जाता है। नहीं, आई गिव डायरेक्शन टू माई एक्टर्स माई सेल्फ। और मेरा एक और भी प्रॉब्लम है, मैं मॉनिटर पे नहीं बैठता हूँ, मैं कैमरा के साथ खड़ा होता हूँ। सही है। मैं या तो कैमरा के साथ खड़ा होता हूँ, बिल्कुल कैमरा के उसमें देखता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू वर्क क्लोजली विद माई DP, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ठीक है शॉर्ट डिजाइन हुआ है, बट समटाइम्स दोज लिटिल मोमेंट्स आपको लगता है यार ये सही कर रहा है, मैं खड़ो के उसको बोल सकता हूँ यार करीब चला जा, ठीक है, क्योंकि तो इस तरह की कुछ चीज़ें ना इम्प्रोवाइज हो जाती हैं। एंड देन इधर मेरे पास इस तरह का ये छोटा वाला स्टैंड अलोन मॉनिटर होता है जो मैं हर जगह लेके घूम रहा हूँ। आई डोंट लाइक सेट एंड ऑन द मॉनिटर, बहुत ही रेयरली। हाँ, आई डोंट सेट ऑन दैट काइंड ऑफ मॉनिटर एवरी डे और माइक पे बोल रहा हूँ एडी ये कर दे, नहीं। हाँ, मैं उठ के जाऊँगा, खुद एक्टर को बताऊँगा। एडीज नहीं बताते हैं, एडीज जो है ना मेरे, वो जूनियर एक्टर को बताएंगे, जो बैकग्राउंड में जितने भी एक्टर्स कर रहे हैं या कोई सपोर्टिंग कास्ट वाला है उसको रिहर्सल करा लेंगे। बट एक्टर्स को ऑन द सेट आई विल गो एंड टेल देम कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक्टिंग की मतलब हाउ डू यू डायरेक्ट एन एक्टर, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग अ परफॉर्मेंस और यू वांट टू चेंज दैट, लाइक सम ट्रिक्स यार सम टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना, हाँ, तो होता क्या है, हमारे जो राइटिंग स्टाइल है ना, इट इज मोर लाइक कि वी आर एक्टिंग एंड राइटिंग। सो वी से अ लाइन, बंदा क्या कहेगा बोल देंगे। एग्जैक्टली। सो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई डायलॉग है ना, कि तो हम लिखते हुए उसको एक्ट इन अ सर्टेन वे, at least give like an expression while writing कि ओके यार वो ऐसे बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा। तो हम लोग हर सीन इसी तरह ही लिख रहे होते हैं और बहुत कॉन्वर्सेशन स्टाइल में लिख रहे होते हैं कि इसने कोई लाइन बोली तो फिर हम डिजाइन कर लेते हैं ऐसे। तो मुझे पता होता है ये बोल किस टोन में रहा है, कैसे है, क्या है। तो जब मैं नरेट भी करता हूँ एक्टर को, फहद को, मायरा को करना है या किसी को भी, तो मैं एक सर्टन वे में कर रहा होता हूँ। एंड देन अदर देन मेन एक्टर, क्योंकि उनको तो पहले से आपने ब्रीफ किया हुआ होता है, दे नो दे व्हेन दे कम ऑन सेट, स्पेशली फहद और मायरा, दे कम प्रिपेयर्ड। फहद के साथ मैं 6 फिल्म्स कर चुका हूँ। उसकी अच्छी बात ये है दैट he always come prepared, he always remembers his line. बहुत ही कम ऐसा होता है दैट कि मैं उसको कभी ना डायलॉग के मामले में बोलूँ यार तू ये याद कर लेनी। He always come prepared. He always, क्या बात है, like एक्टर में बड़े मोनोलॉग है, सब कुछ है, but he always come prepared. और पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। So he takes back his homework and he knows what he's doing tomorrow. And he's going to come in with that mindset. He knows if he's doing something serious today, then he's sitting, in that mood. Yeah. So उनको मालूम होता है। मैं ज़्यादा इंजॉय जो करता हूँ ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक्टर को फहद के साथ, मतलब ठीक है उसको मैं बता दूंगा एक दिन पहले या सेट पे आके बता दूंगा कि चलो यार ठीक है, अगर वो ये लाइन ऐसे नहीं बोल रहा तो मैं बोल दूंगा यार ऐसे कर लो। बट आई डोंट डू रिहर्सल्स, आई डोंट डू इट ऑल ऑन कैमरा। हाँ, मेरा ये कि पढ़कर आए हो, कीप ऑल द टेक्स। आई कीप ऑल द टेक्स। ओके, आई कीप ऑल द टेक्स, ठीक है ना। एंड मैं थोड़े टेक्स ज़्यादा लेता हूँ, लालची हूँ मैं थोड़ा सा उस तरह से, ठीक है ना। अगर अच्छा मुझे मिल भी जाता है ना, तो मैं बोलता चलो यार एक और करते हैं, अब तुम अपने स्टाइल से कर दो, तो हो सकता है मुझे कुछ और चीज़ भी निकल कर आ जाए। बट फहद वगैरह के साथ तो ये कि उनको कम डायरेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो एक केमिस्ट्री भी है, उसको पता है कि क्या चाहिए। लेकिन जो दूसरे एक्टर्स हैं, लाइक जिनकी 1 और 2 लाइन्स है ना, उनको आई रियली एंजॉय डायरेक्ट, बिकॉज उनकी 1-2 लाइन्स है लेकिन वो सोची हुई ऐसी होती है कि यार इसको ऐसे बुलवाना है, तो उनमें बहुत, हाँ उसमें पंच है, तो उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एंड आई रियली एंजॉय दैट पर्सनली ना। मुझे अपनी फिल्मों में ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये लगता है कि यार हम लोग की फिल्म जब हम देखते हैं, अजीब सा लग रहा है मतलब अपनी फिल्म की खुद ही तारीफ करना, लेकिन आई रियली एंजॉय दैट प्रोसेस कि यार एक बंदा अगर एक लाइन के लिए भी आएगा ना, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ये ऐसा है। समटाइम्स इवन ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में भी अगर कोई एक्टर चल रहा है, एंड तो मेरी नज़र ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पर होती है, एंड दिस इज़ वॉट
माई लर्निंग हैज़ बीन सो फार, बिकॉज मैं अच्छी फिल्म भी देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार अच्छा मेकर वो है जिसकी फिल्म के अंदर जो बंदे पीछे चल रहे हैं ना वो भी सही एक्टिंग कर रहे हैं. हाँ या ठीक है ना, वरना समटाइम्स क्या होता है बहुत अच्छी फिल्म है बट समहाउ जूनियर एक्टर्स की वजह से ना वो फिल्म कच्ची लगने लगती है. सो आई मेक श्योर कि यार अगर एक लाइन वाला बंदा भी आ रहा है ना या पीछे से गुजर रहा है वो लोग पक्के होने चाहिए ताकि ना लगे कि यार सबको डायरेक्शन मिली हुई है. ऐसा नहीं है कि पीछे वाले आगे वाले पे ध्यान है, पीछे वाले पे कोई फोकस ही नहीं है. तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है यूजुअली कि यार ऐसे कर लो. समटाइम्स एडी बहुत तंग होते हैं उसपे क्योंकि कास्टिंग बहुत लंबी होती है, कास्टिंग बहुत लंबी होती है. अच्छा या because you know we are like then auditioning for days because एक लाइन वाले बंदे के लिए भी ऑडिशंस 20 25 50 चाहिए आपको. then we filter out कि किसने बेहतर बोली हुई है, किसने उस तरह से बोली हुई है जैसे सोची हुई है, you know like that. So we go through every audition ourselves. ऐसा कोई ऑडिशन नहीं होगा जो मैं और नबील पर्सनली ना देखते हो. and we get like 1500 2000 auditions, you know. wow. So we have to so there's phases, you know, you filter out some, then it goes down to 500, then you filter out, then you filter out, and then sometimes you call 2 people and then personally meet them and see, you know, who can pull it better like and that. then sometimes it's a very job where you have to keep the merit also. और उसकी रीजन है सारे ऑडिशंस देखने की. उसकी रीजन क्या है, समटाइम्स क्या होता है कि ऑडिशन एडीज लेते हैं बट देन व्हेन दे शूट इट वी वॉच इट ऑल ऑफ इट. उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स क्या है हो सकता है क्योंकि एडी है उसको मैंने बताया हुआ है कि यार ये आपने लाइन करवानी है. समटाइम्स कोई ऐसा बंदा भी आ रहा है जिसको एक्टिंग जीरो नहीं आती लेकिन उसकी शक्ल पे इतना कैरेक्टर है. क्या बोलते हो यार ठीक है ये कुछ भी नहीं भी बोलेगा ना, ये कुछ ना बोले, ये सिर्फ इधर बैठा हुआ होगा ना किसी और सीन में रख लूंगा मैं इसको कहीं और. तो मैं इसलिए भी देखता हूँ वो लालच है कि यार कोई एक आधा ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है कि यार जिसने कुछ भी नहीं बोलना है लेकिन ये अगर उस सीन में सिर्फ पीछे खड़ा हुआ भी होगा ना तो इसकी शक्ल इतना कुछ बोल रही है कि मुझे कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं है. क्या बात. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने एक्सपीरियंस भी किए, बहुत लोग हमें ऐसे मिले भी हैं. तो सो दिस इज अ प्रीटी लाइक काफी पेन्सटेकिंग और मेटिकुलस किस्म की एक्टिविटी है जिसके थ्रू पहुंच के आई मीन आई जस्ट एंजॉय द मूवी. आई मीन अल्टीमेटली बाय द एंड आई वॉच इट आई एम लाइक या एंड लाइक I would have, as being a filmmaker, like I understand that there would have been so much work behind it. But how did you build from like एक 10 minute की short film to a 50-minute short film, or did you just go from 10 minute like the short film that you were saying that went into the Kara festival? So उधर से just you jumped up. वो तो बहुत ही छोटी थी. हाँ वो तो 3-4 मिनट वाली short film. वो उसका भी यही level था. Can you watch it? No. You can watch that. Yeah, of course, why not? But then of course, see, I had that little handy cam and we had zero knowledge of film. Yeah, we shot it ourselves. There was no Rana Kamran. No Rana Kamran. No Rana Kamran. came in. No IDs. Only it was 3 of us. We like edited and shooted ourselves. I think उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, कल भी मैं यही बात कर रहा था. I think टेक्निक ये सारी चीजें होती है ना आप विद टाइम सीखते हो, बट what more important is your inner voice. That somehow remains the same. So I remember उस टाइम पे भी हमने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था Blind Faith. It was about a blind child. और वो and he cannot see the flag. Yeah, so he knows it's green. Somebody says it's green. He was once sighted, so and now he's lost his sight when he was a child. So he doesn't know even colors properly. So he says, what is green? And they say, the tree that you're sitting under. So he touched the leaf and tried to feel it. And then, later on he made a flag on Braille. Then his teacher makes a Braille flag for him. Yeah. Which he touches and he knows, okay, this tree-like and things. And then he's getting the colors and that feeling and imagination. This was the film about. Yeah, and then second film was Question Mark. So it's so funny, अभी हमारी फिल्म Quad-e-Azam Zindabad. Third film, no. No. Two short films. Two short films. One was Blind Faith and this. एक Blind Faith और Question Mark. Blind Faith was the Kara Film Festival one. Both. Okay. तो Question Mark, it's funny because अभी Quad-e-Azam Zindabad रिलीज हो रही है and उस फिल्म के अंदर भी Quad-e-Azam हमने जो है ना वो दिखाया था. And that film वो Question Mark basically it's in 2003. तो हमने ये दिखाया था कि एक छोटी सी स्टोरी थी कि 1947 से हाउ डिफरेंट फेजेस सब कुछ अच्छा चल रहा था. एंड देन उन दिनों में बहुत हालात ख़राब हो गए थे, खासतौर पे कराची के बॉम्ब ब्लास्ट एवरीथिंग. सो इट वाज अ क्वेश्चन मार्क कि हम कहाँ से कहाँ आ गए. एंड देन वी शॉट दैट पीरियड वाला पार्ट इन इट, वो Quad-e-Azam की पुरानी गाड़ी. एंड देयर इज अ कैरेक्टर Art Direction Begins. Art Direction Begins. Zero budget. Zero budget. इधर शूट कर लेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है. Favors and all of favors लेके या मिन्नतें करके किसी की all the way. Pocket money, everything. But वो अच्छा टाइम था इस तरह से कि ये fear नहीं होता था कि वो how are we going to recover this, because it was nobody's money. अभी तो डर लग रहा होगा. अभी ये होता है कि यार
It's not about. Can you make the budget public? Do we know how much it cost, this film? We do, but somehow we don't like it, saying. But then there's another conversation over there. Because लोगों के रिएक्शन बड़े अजीब से आते हैं. 6 करोड़. अब प्रॉब्लम आपको बताता हूँ. देखें, बजट ना जज वो बंदा कर सकता है जिसको इस काम का मालूम हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको अब फर्ज करो हमें नहीं पता यार ये फोन बनने में कितने पैसे लगते होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलता है मैंने ये 2 रुपए का बनाया. अब मुझे आइडिया भी नहीं है, मैंने झूठ बोल रहा है यार 1 रुपए का बन सकता होगा. दूसरी बात ये है यार, ये ग्लास या जैसे कोई भी फिल्म है उसकी कोई एक सर्टेन कॉस्ट नहीं है. ये एक क्रिएटिव काम है. इसकी कभी भी आप इसको एक उसमें नहीं बंद कर सकते कि यार ओके ये 2 घंटे की फिल्म है, ये तो 5 करोड़ या 6 करोड़ में बनेगी. नहीं भाई, 300 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक में बन सकती है. ठीक है ना. एंड ये वही बंदा जज कर सकता है जिसको इस काम का पता आइडिया होगा. बिल्कुल ऐसे. तो समटाइम्स हम बता देते हैं तो पीछे से फर्ज करो कोई बोलता है यार झूठ बोल रहे हैं यार इन्होंने तो नहीं बनाई, तो हम इसलिए बताते नहीं, बोलते छोड़ो यार हमारा बजट 1000 रुपए जो आपके टिकट के पैसे, बस वो तो जाके देखो और एंजॉय करो. But you have to make twice the amount you spent, na? Thrice. ये क्या मतलब? They're giving you 30% the cinema guys. No, basically there's also a distributor's share. Yeah. And the cinema share is 50% plus. Sometimes it is 52, sometimes 54. So जो take back और पहले अब तो luckily अल्लाह का शुक्र है इस साल इंशाल्लाह this will be implemented के taxes. But आपको नहीं मिला ना इस वाली फिल्म पे फिर ये? नहीं, अब जो बजट आया, अब जो बजट आया तो अब जो फिल्म रिलीज हो रही है मुझे बनाने में तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, लेकिन अब जब रिलीज होगी तो एक 8% विद होल्डिंग टैक्स होता था जो सिनेमा से कट जाता था, वो पैसे आपके बच जाएंगे. 8% इज अ लॉट ऑफ मनी इन आवर वर्क. क्या विद होल्डिंग तो वैसे वापस मिल जाता है ना? हाँ, लेकिन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मुश्किल से चालान मिलते हैं वो खाली उसके. चालान मिल जाता है. मुझे मिलना है जिसको मिले उससे. तो अगर 7 करोड़ की फिल्म है तो आप 21 करोड़ बनाएंगे तो फिर आप प्रॉफिट में गए हैं. ब्रेक इवन होगा. फिर ब्रेक इवन होगा. अराउंड ब्रेक इवन होगा जी. कोई फिल्में बन रही हैं जो पैसे बना रही हैं या बस लॉस वेंचर चल रही है? देखिए मुझे हमेशा लगता है फिल्म के जो रिकवरी फेज है ना उसको हमें एक रिलीज पे बेस नहीं कर सकते. और खाली थिएटर पे नहीं, खाली बॉक्स ऑफिस को नहीं देखना चाहिए. देयर इज डिजिटल, देयर इज टीवी राइट्स, देयर इज म्यूजिक राइट्स. When we were coming in this business, my brother was our investor, Mehdi. And उसने मुझे उस वक्त कहा था, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया था. उसने बोला यार when we are getting into this is not like a year's plan. It has to be 10 years. It has to be 5 to 10 years. And you have to look into your recoveries into 5 years onwards. क्या बात की? और मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, 5 साल. and he was exactly वो अमेरिका में रहता है ना, उस उधर के लोगों की ऐसी है थिंकिंग. हमारे यहाँ का मसला है हमारे यहाँ शॉर्टकट. यार जानी अभी बताओ प्रॉपर्टी में लगाते हैं, बहरिया टाउन आजकल बहुत चल रहा है, हॉट सेल लगाओ उधर और निकलो. So अगर मैं देखो ना मालूम अफराद 1, now it's in profit. Now it's in profit. Yeah, I mean, but this it wasn't in profit when it first came out. No, it broke even. It broke even, huh? Yeah, but then profit में आते उसको, if I say I've made some money off that film, is now after 7-8 years, OTT platforms को बेचना और ये repeated telecasts and then music rights. Music rights. So वो भी हमने सीखा with time, I mean, it was all a part of our learning with time. Yes. Amazing. I mean, so you were telling me about how you got from the first film to the second film and the Kara Film Festival, and now over years you guys have this synergy where you decided कि हम ये चीज़ें करेंगे. You know what he's good at, he knows what you're good at, and you kind of divide it on set and फड्डे नहीं होते. हाँ, सेट पे हमारा कभी फड्डा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है. वो राइटिंग में हो चुके हैं. हाँ राइट, जो भी आर्ग्यूमेंट है ना वो राइटिंग में हो जाएगा. ये हो जाएगा, मैं बोलूँगा यार नहीं यार फिजा यार ये डालना है, ये सीन ये है अच्छा, फिर ये बोलेगी अब यार ये नहीं है, ये है, फिर मैं बोलूँगा यार ये कर लो. सिर्फ झगड़े जो होते हैं ना वो सिर्फ इसी प्रोसेस में होते हैं हमारे. जनरली आपस में वो कैरेक्टर आर्ट्स वगैरह पे होते हैं, उस पे भी होते हैं. लैंग्वेज पे, कैरेक्टर आर्ट्स पे, टोन पे है, या ये है कि यार ये ऐसा क्यों करेगा, उस तरह की चीजों पे हो जाते हैं. सिचुएशन पे भी हो जाता है समटाइम्स कि नहीं यार ये नहीं है, अच्छी नहीं लग रही. Why is he doing this? Why you think if somebody is in this situation will do this? That kind of an argument. वैसे वो बड़ा पूरा नक्शा आपका बड़ा, मतलब कि you've got a set up and it pays off somewhere in the third act. Some setups pay off in the second act. So you set something up and then do you know as you're going along कि इसको इस तरह pay off करना है? Sometimes you do, sometimes you don't. I mean, you do several drafts. Sometimes you scrap like a whole act and say, oh, it was a wrong turn. And then you go back and you start driving. With Quad-e-Azam, it happened a lot. Quad-e-Azam we started writing and then एक point पे आके हम रुक गए and we don't have any other way to go ahead. It got stuck somewhere.
कैरेक्टर जो है वो उधर आगे बढ़ ही रहा, हाँ मतलब एक सिचुएशन आ गई है, उसके बाद उधर ही रुक गई ये फिल्म, उससे आगे कहानी जा नहीं पा रही है, लॉजिकली नहीं जा पा रही है। क्या बोल रहे हैं यार इसको, अच्छा क्या करें, ब्लॉक आ गया तो फिर छोड़ दिया जा रही है, लेकिन वो लग रहा है कि वो फोर्स्ड है कि हमने कर दिया, ये भी आज लिख दिया, नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए वॉक पे जाते हैं हम लोग यूजुअली, तो हम लोग बात करते रहते हैं, सो व्हाइल वी आर वॉकिंग वी यूजुअली डिस्कसिंग एंड देन वी गेट बैक to the office or some cafe and then we write the points that we've talked, right? So आज बन गया पूरा, हमने रात को लिख भी लिया और नेक्स्ट डे जब हम आए हैं तो हमने दोनों ने बोला है कि यार वो मतलब या ये लेके आया या मैं लेके आई हूँ कि ये तो बिल्कुल ही बकवास की थी ये क्या तो सेल्फ क्रिटिकल है मतलब ये मेरा आइडिया अच्छा है, ये नहीं सेल्फ क्रिटिकल तो है। अब अगर कुछ लिख भी लेते ना तो मैं यूजुअली नेक्स्ट डे ना सवाल ज़रूर लेकर आता हूँ कि यार ये ऐसा हमने किया तो लेकिन ये ऐसा सही नहीं लग रहा, या कुछ इस तरह की चक्कर जो है ना वो होते हैं। और मुझे लगता है जो एक चीज़ हमारी बुराई भी है थोड़ी सी, मुझे लगता है समटाइम्स वी थिंक वेरी लॉजिकल व्हेन वी आर राइटिंग अ स्टोरी ना, हम थोड़ा लॉजिकल सोचने की कोशिश करते हैं। जो लोग कहते हैं ना फिल्म का मार्जिन ले लो या ऐसा नहीं है, मतलब लाइक यू कैन टेक द रूम, you can be like, oh it's creative liberty हाँ अच्छा ओके, जो कि इस फिल्म कायदम में हमने ली है, ठीक है ना, कायदम हमने ली है वो क्रिएटिव लिबर्टी, बट तब भी लॉजिकल रहते हुए हाँ कि यार ठीक है ये ऑडियंस को अपने सेटिस्फाई करना है, उसके ध्यान में ना वो जो क्वेश्चन मार्क है वो फंसता जाए कि यार इसने ये कर दिया लेकिन मुझे तो लगता नहीं ऐसा हो सकता है, यू नो। बिल्कुल ना, वो कंक्लूजन उसको आखिर में सारे मिले कि चलो जो भी हम सवाल करते आ रहे थे वो आखिर में आके उसको सारे जवाब मिल जाए ना, ये ना हो कि 5 सवाल किए थे 4 के जवाब दे दिए, एक हमने बोला चलो क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। Yeah, how long does this writing process take for you guys? Like I mean 2 साल? नहीं अब बेहतर हो गया, it takes a year, about a year, हाँ maximum from the story writing, conversation, writing, rewriting, first draft, second draft, third draft, how many drafts, like I'm assuming sometimes you know you're like after you discuss the concept you're almost there, you start the first draft and you're like no you're not doing this film. अच्छा concept drop ओले so but it's very rewarding and that's what, like I mean मैं as a screenplay writer, becoming one screenplay writer, Mashallah. I'm learning from your movies why is it that I'm crying at this point, you know, मुझे होता है अच्छा मैं रो रहा हूँ, क्यों रो रहा हूँ, and then the way the character arc is gone is rewarded the audience in such a way that you've set up these things and it's led to that crescendo point where the catharsis takes place. Right. And it's there in almost all of the films. And almost all of them are pretty much genre films. कि आप उनको कह सकते हैं ये genre में, वो नहीं कि कोई आर्टसी एक डायरेक्शन चली गई जिस तरह ट्री ऑफ लाइफ में होता है कि कैमरा मुड़ा तो वॉल्केनो में चला गया. Terrence Malick's films are full of these things which are rewarding in their own way, but they're befuddlingly rewarding. Your films are like, it's a genre film. And it rewards you by the end of it. So I'm trying to learn from them कि inciting incident क्या होना चाहिए, और वो अगर inciting incident ये आया इस कैरेक्टर के साथ तो कितने शुरू के 5 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा, how do you hook अच्छा यार पता है मैं बताऊँ, हर किसी का अपना स्टाइल है, बट हमने कभी भी ना इस तरह सोच के राइटिंग नहीं की है आज तक। कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई ब्रेकडाउन नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक बहुत ही पहले भी बता चुके हैं 1-2 बार वैसे, ये हमने जब ना मालूम अफराद लिखी थी ना, हमने उससे पहले ना हमने कुछ नैरेटिव लिखा हुआ नहीं था। हमने शॉर्ट फिल्म लिखी, शॉर्ट फिल्म में तो मुश्किल से हार्डली वो दोनों ऑलमोस्ट साइलेंट मूवीज ही थी। मैं नोट्स लिखती थी लेकिन हाँ कभी भी हमने लिरिक्स वगैरह लिखे थे अपने वो गाने वाने के जिम्मल के, बट आई यूज्ड टू लाइक रेगुलरली राइट नोट्स, बट मैंने कभी कोई स्टोरी नहीं लिखी थी। हाँ छोटी मोटी कोई कॉपी राइटिंग लिख ली किसी प्रोमो के लिए, उस तरह की चीजें लिखी थी। तो ना मालूम अफराद की कहानी क्योंकि हमने सोची थी, हमने बोला यार किससे लिखवाएंगे, फिर हमने सोचा यार कोई राइटर ही नहीं है फिल्म का, तो फिर हमने बोला यार एक काम करते हैं हम स्क्रीन प्ले खुद ही लिखते हैं। तो क्योंकि ना हमने कहा कि यार चलो अगर फेल भी हुए ना तो रिग्रेट होगा यार खुद फेल हुए, अगर किसी और से लिखवाएंगे ना उसको ब्लेम करते रहेंगे उसको हम सारी जिंदगी कि अरे यार इसने गलत लिख दी थी शायद इसलिए सही नहीं हुआ। तो लेट्स यू नो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ठीक है ना, एग्जैक्ट, तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने वो लिखी एंड समहाउ इट वर्क, लोगों को अच्छी लगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ना मालूम अफराद बन के हम कभी पब्लिक शोज में जाते थे देखने ना, तो उस वक्त मुझे खुशी इस बात की नहीं होती थी कोई शॉट को देख रहा है नहीं दिख रहा है, बट हाँ अगर उनको हंसी आती थी उस डायलॉग पे और वो ताली मारते ना, तब हमें एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता था कि यार ओके। और जो कि हमने कभी पहले एंजॉय नहीं किया हुआ था। विजुअल देख के तो लोग बोलते थे कि कभी बोल देते थे टीवी कभी कोई काम करते थे बड़ी अच्छी शूट हुई है, तो इंस्टिंक्ट है बेसिक। तो वो हाँ, तो हमने कभी भी, मैंने तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी उससे पहले।
हम लोग अभी एक रेजिडेंसी के लिए LA भी गए हुए थे, वहाँ पे भी हमारी काफ़ी राइटर्स से मुलाकात हुई। पहले मुझे लगता था कि हमारा काम करने का तरीका ऑड है, सही नहीं है, लेकिन ये जो किताबी तरीका एक है ना, इट मे बी गुड, यू नो, कि ग्राफ होना चाहिए, 10 मिनट में ये आ जाना चाहिए, 15 मिनट, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, यू नो, इट इज़ जस्ट लाइक मैथड एक्टिंग, you get it, it's method writing. Then, what you need to do as a writer is you need a free fall. You need to leave your brain out with those characters, and see, this is a lot of hard work. You have to write. You may write 700 pages, and then you take out like 100 pages that is your script, you know. I see. You get it? But वो bullshit नहीं है. That is basically that is the labor that you have to go through. I see. That is the process. And then graph खुद ब खुद ही बनेगा. Then उसमें आपको पता चलेगा, oh, this is coming here. You know, it's like putting the jigsaw puzzle together. First you spread it. I use this book called Save the Cat. I don't know if you've heard of it. It's उसके अंदर उसने genres को break down किया हुआ है और उसने कहा inciting incident फलाना ढिमकाना, और एक genre है called bro love, एक genre है romantic comedy, हर romantic और genie in the out of the box, और मॉन्स्टर इन द हाउस, कि मॉन्स्टर इन द हाउस में क्या होता है, लोग एक घर में फंस जाते हैं और मॉन्स्टर सारों को खा जाता है, एक को नहीं खाता। तो दैट्स अ जॉनरा, राइट, सारे मरते हैं, सबसे पहले काले खाए जाते थे पहले एक जमाने। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, थिंग्स हैव इवॉल्वड, बट इट्स द सेम जॉनरा। सो दैट बुक ब्रेक्स डाउन दिस थिंग। आई हैव यूज्ड इट अ फ्यू टाइम्स, बट नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइज आई वांट टू स्टॉप यूजिंग इट टू डॉक्टर योर स्क्रिप्ट। क्या आपको लग रहा है ना कि कुछ मसला है, you know, और समझ नहीं आ रही क्या मसला है? जब हमने ना मालूम अफराद 1 लिखी थी, we had some friends in India which are great filmmakers, you know, so हमने उनसे हेल्प मांगी थी। अच्छा। हमने कहा यार, हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है, इसको डॉक्टर कराना है। हमें उस वक्त ये नया पता चला था स्क्रिप्ट भी डॉक्टर भी होती है, तो हमने कहा कराते हैं। तो उसको हमने भेजी, और वो माशाल्लाह खुद ज़बरदस्त, मतलब बड़े डायरेक्टर हैं वहाँ के, उसने किसी अपने डॉक्टर भाई को दे दी। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, जो राइटर था, जो डॉक्टर करता था वहाँ पे कंटेंट को, उसने वापस दी। उसने बोला देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मुझे लगा ये पैसे बचाने के लिए कह रहा है, यू नो। मैंने कहा यार वी विल पे, यू नो, just get it doctored because it's our first film, you don't want to take a chance. And he said, well, your script is just fine, you know. I mean, there's also this thing called gut, which you call instinct, you know, you follow your heart. एक चीज़ और जो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या, ये फिल्म हम सिनेमा में एंजॉय करेंगे, because so you don't make it for a supposed audience, आप अपने लिए बना रहे हैं। कि यार अगर हम ये फिल्म देखने जाएंगे masses, you know, तो फिर किस लिए? तो हम अगर देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे जैसी ही है, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि यार हाँ हम इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, सही है, तो ठीक है बनाते हैं। एंड देन यू नो ओनली थिंग आई फील कि आई नो देयर आर लाइक रूल्स व्हिच इज गुड टू नो, बिकॉज आपको रूल मालूम होंगे तभी आप उसको यू नो तोड़ेंगे, एंड इट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन मुझे लगता है कहानी की सिर्फ एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, इट हैज़ टू बी एंगेजिंग, इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग, दैट्स इट, एंड रिलेटेड। अदरवाइज इट डजंट मैटर कि आपका वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आ रहा है, विलन है या नहीं है, जरूरी नहीं है हर कहानी में विलन हो। सिचुएशन भी तो कहानियाँ क्या है, हर इंसान की जिंदगी की तरह है ना, जरूरी तो नहीं है किसी इंसान की जिंदगी में विलन नहीं है यार, उसकी जो सिचुएशन है मे बी वो विलन है, जरूरी नहीं है विलन फिजिकल हो। तो बहुत सारी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। एंड देन एक और अभी चीज़ लेटली मैंने उधर हमने LA में ही रेजिडेंसी में सीखी थी, वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है इतने अरसे में, जो मुझे थोड़ी सी समझ में आई कि यार हाँ ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जिसके अंदर आप लिख के ना कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड पिक्सार मेथड, जो कि कहानी के लिए बहुत अच्छा है, कि उसके सिर्फ 5 नोट्स हैं, आई विल व्हाट्सएप टू यू, ठीक है ना। अभी मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं याद है, उसमें है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस देन दिस बट देन, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। सो इफ यू पुट योर स्टोरी इन दोज 5 पॉइंट्स, so you will know, okay, you have the main log line basically. Yeah, so log line, or you have like the complete story which has opening and ending and conflict. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा। And when I, because अगर आप कभी भटक रहे हो तो आप वापस उस लाइन पे जा सकते हैं, हाँ, अपने स्क्रिप्ट को सीधा करने के लिए, because उधर चले गए थे बेसिकली उसके अंदर, हाँ उसके अंदर 4-5 चीजें जो आप, जैसे राजकुमार हिरानी करते हैं, वो कहते हैं जी मैं LCD उनका वो है मेथड के जी, लाफ क्राई और ड्रामा, यू नो, जिस सीन में इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं होती, आई डोंट कीप इट इन माय फिल्म। You know, everybody has his own way of doing things. That's amazing as well. Yeah. So you know, so
So yeah, this is it. Yeah. Amazing. I mean, I got to learn so much from you guys, and I'm such Thank a you. big fan. We Thank you so much. Really enjoyed for this being- conversation. Yeah. This is something that we really get to do. Yeah, because interviews normally जो होते हैं वो तो वही होते हैं कि फिल्म में क्या है और कैसा हो रहा है क्या. I know ठीक है वो उनकी अपनी एक डिमांड है उन इंटरव्यूज की भी, लेकिन as a makers we enjoy this sort of a and thing. your insight Yeah. of the Same. work that we're doing, Yes. because Yeah. usually Yeah. people don't know Yes. what we do. So somebody who I'm knows an it's very aspiring nice. filmmaker at some point. Wow, Want to hit interesting. And cinema myself. I must say that my nephews they are into like YouTubers, so they I remember when I met you in Lahore, so I you posted a photo on your Instagram with me, and my nephew जो कि घर में मेरी कोई मतलब इज्जत नहीं है कि आप मेकर मुझे फिल्म मेकर कुछ नहीं समझते, वो ऐसी मैं उनको दिखाता हूँ ना, हाँ ठीक है ये वाली वाइब्स है, ये बोलते हैं वो ना, तो they sent me this photo, you met Mooroo, and I was like okay, मतलब see so I really like your blogs because For it me, has it was that the other way interesting around. shooting. I met Nabeel, like I was the other way around for me. How sweet. So That's you should very tell sweet. them. That's how he feels about me, baby. Well, thank you so much for being Thanks a on. I've lot. learned so much from this conversation.